السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے قوم کو عید کی مبارکباد دی اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف نے بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ عسکری قیادت نے اس موقع پر ملک میں پائیدار امن، قومی یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ مسلح افواج پاکستان کی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور وطن کی سلامتی کے لیے قوم کی جرأت و قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد سے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ سعودی عرب کے دوران عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد اور غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وفد نے بنیاد المرصوص کی عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا، نوافل ادا کیے۔ امت مسلمہ، کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شہباز کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ نواز شریف نے لندن میں نماز عید کے بعد لیگی کارکنوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی بہترین جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف فتح دلوائی اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ آرمی چیف نے بھارت کو شکست دی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے اور شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے۔ وہ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں اور چمڑیال میں بڑے مارجن سے فتح حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں نماز عید کے بعد نون لیگ کے کارکنوں سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، بلاول بھٹو کی صدر ٹرمپ سے پاک بھارت مذاکرات میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے واشنگٹن میں امریکی انڈر سیکرٹری ایلیسن اور قانون سازوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکیاں وجودی خطرہ اور جنگ کے مترادف ہیں۔ بلاول نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکراتی ایجنڈے میں شامل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں خطرناک رجحان قائم کر رہا ہے اور 1.70 ارب انسانوں کو غیر ریاستی عناصر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بلاول بھٹو نے بھارتی سپر سونک میزائل کے ممکنہ استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا میزائل حملے میں فیصلہ کرنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آئندہ جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس بھی مداخلت کا وقت نہیں بچے گا۔ President Trump had diplomacy, and just like the United States and President Trump played a role in encouraging us to achieve this ceasefire, I believe that they should play their part in encouraging both sides to engage in a comprehensive dialogue. So Pakistan, I think that the fate of 1.7 billion people in our two great nations should not be left in the hands of these nameless, faceless, non-state actors. And this new normal that India is trying to impose on the region, that if there's a terrorist attack anywhere in India, you don't have to provide a shred of proof, but you go straight to war. And the law of reciprocity means that if there's a terrorist attack in Pakistan, we have to do the same. And that's reduced the threshold between military conflict between two nuclear armed states. Sort of leaving. President Trump has helped avert a very dangerous conflict where the escalation ladder was going up far too fast. India fired nuclear-capable missiles, dual-use missiles into Pakistan. Sure, they didn't have nuclear weapons on them, but that's like a 30-second timeline for Pakistan to decide that is this a nuclear-armed missile coming to you or not. And you look at the
नाज़रीन, हुकूमत के दावे धरे रह गए। तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम। गंदम, चावल और कपास समेत मुतादिद फसलों की पैदावार हदफ से कम रही। रवाम माली साल के इक्तसादी सर्वे के खदहाल सामने आ गए। इक्तसादी तरक्की की शरह में 3.6% के बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी, 2% हदफ के बरक्स पैदावार सिर्फ 6.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई। चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% के बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ के बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 के बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। आवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रही हैं। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ 9,300 अरब रुपये रही हैं। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपये रही है। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये रहे। माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपये रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 2 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियां की गईं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा, तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत से इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। नाज़रीन, विफाकी बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमिन के तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जिन पर हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमिन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमिन के लिए 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तनख्वाह और पेंशन में महंगाई के तनासब से 10% इजाफा और गुज़श्ता 2 अडाक अलाउंसेस में से एक को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ दी गई है। आर्म्ड फोर्सेज को कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई है। जैज़ और एंग्रो कॉरपोरेशन के दरमियान तारीखी माहिदा मुकम्मल हो गया। माहिदे के तहत जैज़ के असासे एंग्रो को मुंतकिल कर दिए गए हैं। जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम का कहना था कि ये शराकतदारी एंग्रो के विजन को हकीकत में बदलने की जानिब एक अहम कदम है। जैज़ और एंग्रो कॉरपोरेशन के दरमियान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक तारीखी माहिदा कामयाबी से मुकम्मल हो गया। माहिदे के तहत जैज़ के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर असासे एंग्रो को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि जैज़ इन असासों को तवील मुद्दती लीज पर इस्तेमाल करता रहेगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों के साथ साथ यूरोपीय मालिक में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा दुनिया भर के हुज्जाज कराम ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुनक़िद हुए, जहाँ लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम ने नमाज ईद अदा की। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जहाँ लाखों फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी गई। हुज्जाज कराम ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद एहराम खोल दिए। मुत्तहदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात हुए। मस्जिद अक्सा में हजारों फलस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। अहले गजा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लंदन समेत बरतानिया, आयरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान, इराक और फलस्तीन में आज ईद कुर्बान मनाई जा रही है। यूनान में भी ईद कुर्बान मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। एथेंस में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सरकारी जामे मस्जिद में हुआ, जहाँ हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा करकरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत ने हमारी तहम्मुल बुर्दबारी की पॉलिसी को कमज़ोर समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जारहियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सिफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। माना से जब मैं पूरी दुनिया में मैं गया हूँ और वहाँ की लीडरशिप से जब मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने हमारे इस अक़दाम को अप्रिशिएट किया, उसको खराज तहसीन पेश की है कि हमने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा किया। एक न्यूक्लियर पावर को ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि हम आपको जो है हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने के लिए हम आपको ऑफ़र करते हैं। उन्होंने वो ऑफ़र हमारी रिजेक्ट कर। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये इसकी अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान दायमी अमन का ख़्वाह है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि इलाकाई या आलमी ताकतें इस्तेहकाम को जंग से नहीं बल्कि अमन के जरिए कायम रखती हैं। भारत इस रिवायत से हट रहा है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी एक खतरनाक रिवायत कायम कर रही है। दुनिया के मुकम्मल फिल्म के इंतजार के बजाय इस ट्रेलर से सबक लेकर बर वक्त किरदार अदा करना चाहिए। An 87-hour war. Pakistan is now not going to be defined by terrorism or war. If India chooses to do that, that is India's own obsession with perpetual war. We don't like to see perpetual war. We're looking for the Indus Waters Treaty to be restored. There is no provision in the law for this treaty being put in abeyance, and we see attacks on water, weaponization of water as an act of war. बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन हुकाम की तैनाती के मामले का जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुझसे रब्ता किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने रब्ता करके कहा कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हमने इसके जवाब में कहा कि हुकूमत से कोई रब्ता नहीं होगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमीशन तैनाती का मामला एक आइनी मसला है। उम्मीद है कि ईद के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मामला मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में जारी लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा कि इलेक्ट्रिक के बारे में MQM बड़ा फैसला करने वाली है। बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लोड शेडिंग के हवाले से किया जाएगा। शहर का 80% मैंडेट हमारे पास है। उन्होंने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिले। कराची हज़ारों अरब विफाक को देता है मगर हमारे 15 अरब के हुसूल के लिए इजलास करने पड़ते हैं। सूबा सिंध करप्शन के हवाले से इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुका है। हज़ारों अरब में पाकिस्तान के बजट में उसका हिस्सा है। जब 15 अरब रुपए 20 अरब रुपए 3.5 करोड़ के शहरियों के लिए मांगता है तो हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। उनके शहरी इलाकों की जहाँ की नुमाइंदगी हमारे पास है, उससे पाकिस्तान के मसले का आगाज़ किया जाए, बात की जाए। आपने 18वीं तरमीम के जरिए जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए था, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुआ है कि इलेक्ट्रिक 2008 से पहले ऐसी चल रही थी। 80% सवाल उन्हीं से रिलेट करते हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं। हाफिजाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती का दूसरा मुलजिम भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक दूसरे मुलजिम की पहचान लाइक के नाम से हुई है। दूसरी जानिब पुलिस ने खुद एहतसाबी के अमल के इस केस में कोताही बरतने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजाबाद थाना कसोकी के नवाही गाँव मांगट ओंचा में 4 मुलजमान ने मुसाफिर मियाँ बीवी को असलहे के जोर पर अगवा और फिर खावंद को बांध कर बीवी के सामने इज्तिमाई ज़्यादती की थी और वीडियो बनाई थी। पुलिस सबसे बासे मुलजिम इकराम मांगट की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। दूसरी जानब गैंग रेप के मुलजिम को गिरफ्तार करके छोड़ने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज के खिलाफ SHO की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने 1,40,000 रिश्वत लेकर मुलजिम को छोड़ा। दोनों पुलिस अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर लीगल मुनीब लियाकत मुलजिम इकराम का चचाजाद भाई है।
मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।